Good morning, student. I am Rajendra Simburi, your maths teacher from Vijnan Manjari Vidyapith Mova. Again, welcome back in this online session of class 8 mathematics. Today, we just go for the another one concept time 12, that is available on your supplementary book, and this supplementary book SB50, that is a concept, and that concept is suggest that finding the square root using the division method. So we already discussed before that how to find out the square root with the ordinary method. Now we are going for the another one method, that is the using the division method. That is the little bit harder one, but if it is convenient for you, then you can also use this stepwise procedure for the finding the square method. So if we are using the square root using this division method, so first of all, what should we do for that? Here given the all the steps here. Suppose if we have to find out the one examples here, you can also understand that concept first, that if we are using the under root 9604, so 9604, if we find out the under root of this particular number using the division method, then what will do for that? First of all, there are various steps for it. First steps, that is considered in your supplementary book. You can also see simultaneously from your supplementary book, that is SB15. I hope everyone that open that book, and you can also simultaneously check how this particular under root using with the division method. So first of all, first step is considered that pair up the digits. मतलब we have here four digit 9604. So first we have to make a pair. पहले हमें पहले स्टेप में उसको पेयर बनानी है, पहले 96 की एक पेयर और 04 की एक पेयर, इतना पहले स्टेप में करना है। समझ में आ गया? फर्स्ट स्टेप, place a bar over every pair of digit in the dividend starting from the ones place। मतलब हमें वंस प्लेस से स्टार्ट करके एक बार बनाना है, एक लाइन बनानी है दो दो पेयर के ऊपर। तो 4 और 0 उसके ऊपर एक लाइन बनाएंगे, दूसरी 6 एंड 9 मतलब उसके ऊपर भी एक बार बनाएंगे। फर्स्ट स्टेप, pair up the digits। now we are going for the step number 2, find the divisor and the quotient। so here given that हमें क्या करना है, डिवाइजर फाइंड करना है एंड क्वेश्चन भी फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे हम? पहले तो दो पेयर बना दी, फिर ऐसे ही लाइन हमने यूज कर दी। फिर फाइंड द लार्जेस्ट नंबर हुज स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू द पेयर। तो पहले 96 और 04 में कौन बड़ा नंबर है? 96। तो उसका हम लार्जेस्ट नंबर चूज करेंगे और उसका स्क्वायर हम निकालेंगे। मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर हम करेंगे, तो यदि उसके आसपास या उसके उस नंबर के जितना, मतलब 96 है तो हम एक नंबर यूज करेंगे जिसका स्क्वायर 96 के बराबर या 96 से कम हो। तो ऐसे कौन किस नंबर का स्क्वायर होता है? जस्ट वी हैव टू चेक इट आउट। फाइंड द लार्जेस्ट हुज स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू द पेयर ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट। मतलब जो लेफ्ट साइड है उसको ही हम कंसीडर करेंगे। मतलब 96 हमारी लेफ्ट साइड है, तो 96 का हम स्क्वायर यूज करेंगे। दिस नंबर विल बिकम द डिवाइजर एंड द क्वोशिएंट। मतलब हम ऐसा करेंगे कि 9 का हम स्क्वायर निकाले, तो 9 का स्क्वायर हमें याद है कि 9 का स्क्वायर 81 होता है। तो 81 96 से कम है, तो 9 है वो डिवाइजर भी बन जाएगा और क्वोशिएंट भी बन जाएगा। तो 9 का स्क्वायर क्या हुआ? 81। आप देख सकते हो कि 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है और 10 का स्क्वायर होता है
that should be considered as a 100. तो अब ये जो चीज हम यूज करेंगे उसमें 9 ही कन्वीनियंट है जो 81 होता है, जो 96 से कम होता है, क्योंकि हमें कंडीशन स्टेप नंबर 2 में क्या दी गई है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर whose square is less than or equal to the pair on the extreme left. This number become the divisor as well as the quotient. Divide and get the remainder. अब 9 9 जार 81 होता है, तो 96 में से 81 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और हमें रिमाइंडर फाइंड करना है, तो वो मिलेगा हमें स्टेप नंबर 2 में 15. तो 15 हो गया. बाद में हम स्टेप नंबर 3 में जाएंगे. स्टेप नंबर 3 में हम यूज करेंगे राइट द नेक्स्ट डिविजन, ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट पेयर. मतलब हमें 96 में से 81 का सब्ट्रैक्ट किया तो वो बचता है हमारा 50. ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट पेयर टू द राइट ऑफ द रिमाइंडर. रिमाइंडर के राइट साइड पे हमें नेक्स्ट पेयर को नीचे लाना है. मतलब 04 जो सर्कल किया है वो क्या कहाँ पे लाना है, नीचे लाना है. तो 96 में से 81 गया तो 15 बचता है, और ऊपर से थर्ड स्टेप में हमने वो पेयर नीचे उतार दी. वो हो गया हमारा नया डिविजन. देयर विल बी द न्यू डिविजन 1504. अब हम आगे बढ़ते हैं 9 एंड 9. तो हम 9 और 9 का अभी टोटल क्या होता है, 18 होता है. तो जस्ट वी हैव टू गो फॉर द स्टेप नंबर 4. फाइंड द न्यू डिवाइजर, डबल द क्वेश्चन. क्वेश्चन जो है उसका हम डबल करेंगे. डबल करेंगे मतलब 9 प्लस 9 कितना होगा, 80. एंड राइट इट अलोंग विद द ब्लैंक ऑन इट्स राइट साइड. मतलब 18 के बाद जो राइट साइड है वहाँ पे हम न्यू डिवाइजर लिखेंगे. दिस विल बी द न्यू डिवाइजर. मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, 9 का डबल किया तो 18 हुआ. 18 के बाद जो ब्लैंक बचती है वहाँ पे हम लिखेंगे. स्टेप नंबर 5 में फाइंड द न्यू क्वेश्चन. अब क्या करेंगे, सिलेक्ट द लार्जेस्ट डिजिट फॉर द ब्लैंक. मतलब हम ऐसा करेंगे कि जो लार्जेस्ट डिजिट है वो वहाँ पे हम यूज करेंगे. एंड द क्वेश्चन सच दैट व्हेन द डिवाइजर इज मल्टीप्लाइड विथ द क्वेश्चन. मतलब 9 into 2 होता है 18. तो हम हाईएस्ट या लार्जेस्ट डिजिट वो ब्लैंक की जगह पे यूज करेंगे, तो वो हो जाएगा 8. द प्रोडक्ट इज लेस देन और इक्वल टू द न्यू डिविडेंड. न्यू डिविडेंड जो होता है उससे उसकी प्रोडक्ट जो होती है 188 into 8. जब हम करेंगे दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो वो मिलेगा हमें 1504. तो 1504 मिल जाएगा. मतलब स्टेप नंबर 6 दैट इज ओवर हियर. Divide and get the remainder. If the remainder is not 0, the number is not a perfect square. But यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, remainder 0 मिल रहा है. So that is a perfect square. So 98 is the answer of it. समझ में आ गया. तो ये जो स्टेप 6 है 1 से लेके 6 तक, ये पूरे स्टेप्स आप अपनी बुक में इसी एग्जाम्पल्स को रख के साइड में पहले लेफ्ट साइड पे आपको स्टेप लिखना है और राइट साइड पे आपको ये पूरा सम कैलकुलेट करना है SB 15 के ऊपर से. समझ में आ गया. सो दैट थिंग्स यू हैव टू कवर. अब हम उस एक्चुअल प्रोसीजर को फिर से देखते हैं. नाउ वी आर शोइंग फ्रॉम दिस सप्लीमेंट्री बुक. नाउ वी आर गोइंग फॉर द स्लाइड्स. सो लेट अस मूव ऑन इट. So how actually we find out the square roots? Just we have to check it out. Finding the square root using the division method. अभी हमने बुक में से पूरी प्रोसीजर देख ली. That is a whole 6 steps. आप 2 बार 3 बार यही steps को follow करेंगे, then you have to cover this division method. Okay? Otherwise we are also using some easy methods also. But first if you have to understand these things, then we can follow this method. Otherwise we have to go for the another one. So how to find out the square root using the division method? Just we have to check how many digits are there in the square root of the 4 and 6 digit number. पहले आप देख सकते हैं कि 4 डिजिट के नंबर्स यहाँ पे गिवन है 1024 9804 एंड 6 डिजिट के 2 नंबर हैं, उसके सभी के स्क्वायर रूट यहाँ पे गिवन है. सो हाउ कैन वी सॉल्व आउट?
First one, the square root of a 4-digit number has 2 digit, while that of a 6-digit number has a 3 digit. मतलब ऐसा हमें ऑब्जर्व करने के बाद पता चल रहा है कि जो 4 डिजिट का स्क्वायर रूट है उसका जो भी रूट आ रहा है, स्क्वायर रूट आ रहा है, वो क्या है, 2 डिजिट का। और जो 6 डिजिट का स्क्वायर रूट है उसके जो आंसर आ रहा है स्क्वायर रूट का वो है 3 डिजिट का। मतलब 4 है तो 2 आ रहा है, 3 है तो 6 है तो 3 आ रहा है। नेक्स्ट वन, we can say that in the square root of 4 and 6 digit number, the number of digit is half of that in the squares। मतलब ऐसा हम ऑब्जर्व करने के बाद बता सकते हैं कि दैट इन द स्क्वायर रूट ऑफ 4 एंड 6 डिजिट, 4 है तो उसका आधा 2 होता है, 6 तो उसका हाफ होता है 3। So that we can say that in the square root of 4 and 6 digit number, the number of digit is obviously half of the square, वो square का half है। Now ये जो procedure है वो अच्छी तरह से समझना। Now in the square have odd number of digits. For example, 3, 2. If the square have odd number of digits, 3 and 5. The square root have 3 plus 1 divided with 2. That's why we have got 2. And 5 plus 1 divided with 2. That's why we got 3. मतलब ऐसा हम कह सकते हैं कि जो ऑड नंबर है, मतलब 3 है, 5 है, वो सब में हम कितने स्क्वायर रूट मिलेंगे, 2 डिजिट्स। Or we can say that 3 and 5 both are the odd numbers, then the square roots have always 2 and 3 digit respectively। तो इससे हमें पता चलता है कि 3 डिजिट है तो 3 में एक ऐड करने के बाद यदि हम 2 से डिवाइड करें then we got the 2। 5 plus 1 divided by 2 then also we got 3। Similar way, if we are using that square root of a number for a square number with n digits, we can say in the following like that: if n is the even, यदि n even number है, the number of digit in the square root will be n by 2। even है तो n by 2 हम यूज करेंगे। यदि n मतलब कोई भी नंबर odd है, then the number of digit in the square root obviously will be n plus 1 divided with 2। तो ये जो रूल है दो, वो रूल अच्छी तरह से आप याद रखेंगे। If n is even, then n by 2. If n is odd, then n plus 1 by 2. So knowing the number of digit in the square root is useful while finding square root of a number using the division method। So let us useful these things into the find out the understanding point of view। Without calculating square roots, find the number of digit in the square root of the number given below: 25,600 and so on, second and third। So what to do for that? First one is that it is a 5-digit number, 1 2 3 4 5। So the square root will be have 5 plus 1 divide with 2, क्योंकि 5 is odd number, so 5 plus 1 divide with 2, that's why 3-digit number ही होगा। 1 0 0 0 0 0 0 0 6 times zeros is that, sorry, 8 times zeros are there, so 8 times zeros is that it becomes a 1 included, that it become a 9-digit number। 9 digit is also a one kind of odd number, so 9 plus 1 divided with 2, that's why we got 10 divided with 2, that is 5। 36864, that is also a 5-digit number, so 5 plus 1 divided with 2 is equal to 3 digit। ऐसे भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअल आपको कैलकुलेशन नहीं करना होता है। विदाउट कैलकुलेटिंग यू हैव टू स्क्वायर रूट फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट, यानी स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट होगी ये यदि आपको सिर्फ फाइंड करना है। तो ऑड नंबर है तो n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 करना है, यदि इवन नंबर है तो n by 2 करना है। समझ में आ गया? ओके, सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इफ square root of a number, if we have already covered some method to find the square root of a number। पहली जो मेथड हमने सीखी थी वो रिपीटेड सबट्रैक्शन वाली थी,
और दूसरी जो हमने सीखी थी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नाउ लेट अस नाउ लुक एट अनदर मेथड दैट कैन बी यूज्ड टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ लार्जर नंबर। अभी कोई बड़ा नंबर है तो उसको कैसे फाइंड करते हैं, ऑलरेडी हमने दो ऑलरेडी सीख चुके हैं, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड एंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। So let us move for the third one, that is the division method. So finding the square root of a number using the division method, find the square root of 4096 using the division method. So place a bar over pair of digit. अभी मैंने बुक्स में भी आपको बताया, वैसे ही आपको करते जाना है कि चार नंबर है तो चार में से दो दो की पेयर बनानी है, 40 और 96। Place a bar over every pair of digit in the dividend starting from the ones place। ones place मतलब 6 से आपको स्टार्ट करना है, 6 और 9 के ऊपर बार बनाना है, फिर 0 और 4 के ऊपर बार बनाना है, मतलब जो ब्लू लाइन है उसको हम क्या बोलेंगे, बार, and it becomes a one pair. So this is the step number 1. Now in the step number 2, first pair मतलब first pair is 40. Now the find the largest number 40 and 96. Find the largest number whose square is less than or equal to the pair of the extreme left. जो लेफ्ट साइड की ओर है वो पेयर का आपको लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है जिसका स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू दैट पेयर होगा। समझ में आ रहा है, मतलब फर्स्ट पेयर है वो 40 है क्योंकि लेफ्ट एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे कौन सी पेयर है, 40, उसका स्क्वायर नंबर आपको निकालना है और वो कैसा होना चाहिए, 40 से कम होना चाहिए या 40 जितना होना चाहिए। तो हम कहते हैं कि 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है। 49 है वो 40 से बड़ा होता है, तो ये दोनों नंबर हम कंसिडर कर सकते हैं, 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। तो हम सबसे नजदीक वाला कौन है, 6 का स्क्वायर 36। सो दिस इज द क्लोजेस्ट स्क्वायर नंबर लेस देन 40, देयरफॉर डिवाइजर एंड क्वोशिएंट विल बी 6। तो अब वो डिवाइजर भी बन जाएगा और क्वेश्चन भी बन जाएगा, दैट इज द स्टेप नंबर 2 इज दैट। तो अब जैसे स्टेप नंबर 2 हम रेफर करेंगे उसको कैसे लिखेंगे, 40 96 6 6 जार, जैसे 6 6 दोनों राउंड में लिखा है तो 6 डिवाइजर होगा और 6 क्वेश्चन होगा। समझ में आ गया, दिस नंबर विल बी इन द डिवाइजर एंड द क्वेश्चन, डिवाइड द क्वेश्चन बाय द डिवाइजर, divide the quotient with the divisor by the divisor to obtain the remainder। तो हमें क्या करना है, 6 इंटू 6 को हमें मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, तो हम क्या कंसिडर करेंगे, 6 इंटू 6। सो ऑब्वियसली 6 इंटू 6 क्या होगा, 36। 36 होगा तो हमारे पास 40 में से 36 गया तो क्या बचता है, 4, दैट इज द रिमाइंडर। तो दैट इज द स्टेप नंबर 2 इज नाउ ओवर। Now we are going for the step number 3. Now bring down the next pair to the right, मतलब 96 जो अभी बची है उसको नीचे उतार देते हैं, रिमाइंडर के साइड में लिख देते हैं, 4 रिमाइंडर हमारा बचे सेकंड स्टेप में, उसके बाद हम नेक्स्ट पेयर को नीचे लाते हैं, वो 96 मतलब 496 हो गए, वो पूरा हो जाएगा हमारा न्यू डिविडेंड। This will be the new dividend here. That is the step number 3 is there. Now step number 4, double the quotient। अब 6 जो है उसका हमें डबल करना है, 6 का डबल क्या होगा, 12 होगा। 6 का डबल क्या होगा, 12 होगा। वो हम क्या कहाँ पे लिखेंगे, न्यू डिवाइजर की पोजीशन। डबल द क्वोशिएंट एंड एंटर इट विथ ब्लैंक ऑन द राइट हैंड साइड। हम वही चीज़ कहाँ पे मेंशन करेंगे, जहाँ पे डबल करने के बाद जो ब्लैंक बचती है, जो रेड स्क्वायर आपको दिखाई देता है, वहाँ पे आपको लिखना है। मतलब 12 के बाद डबल द क्वोशिएंट एंड एंटर इट, डबल क्वोशिएंट कर दिया, बाद में वही डिजिट कहाँ पे लिखनी है जो रेड स्क्वायर किया वहाँ पे। तो obviously 1 2 and 6 that should be inside that, and that is our new divisor is there। So this is the step number 5 is there, select the largest digit for the blank and the quotient such that when the divisor is multiplied the quotient, the product is less than or equal to the new dividend। तो 121 इंटू 1 121 होता है, 122 इंटू 2 244 होता है, 123 इंटू 3
369 होता है 124 इंटू 4, दैट शुड बी 496 होता है। तो हमारा जो डिविडेंड होता है वो एग्जैक्ट 496 की तरह आता है, तो हम 4 को क्वेश्चन की जगह पे और ब्लैंक की जगह पे रख देंगे। तो ये हो गया हमारा पूरा डिवीजन स्टेप नंबर 5। अब जैसे ही स्टेप नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो जाता है, स्टेप नंबर 5 में और हमने 124 इंटू 4 किया तो 496 आया, देन दैट शुड बी रिमाइंडर विल बी कंसिडर एज a 0. So divide 496 by 124 to obtain the remainder. So this is the step number 5. And now last one step is that continue performing step 3 to 5 until the remainder becomes 0. जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना आए तब तक आपको ये कंटिन्यू प्रोसीजर करती रहनी है। समझ में आ गया? कौन से स्टेप? स्टेप नंबर 3 से 5, जब तक आपका 0 नहीं आता। जब 0 आ जाता है देन यू कैन डायरेक्टली पुट इट। तो ये हुआ आपका डिवीजन मेथड। अच्छी तरह से समझना है और अच्छी तरह से उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो स्टेप नंबर 2 में हम कैसे लिख सकते हैं? 4096 का अंडर रूट होता है 64, so that is the square root of it. Now next one portion for today, you have to performing both of 3 to 1 3 to 4 and 15 6 to 5 using the division method। मतलब 324 and 1500 15,625 ये दोनों नंबर को डिवीजन मेथड से करना है और ये आपका होमवर्क भी रहेगा। जो मैंने एग्जाम्पल सप्लीमेंट्री बुक में आज पहले वीडियो में दिखाया पहले पोर्शन में, वो आपको होमवर्क में लिखना है। अभी हमने दूसरा इस स्लाइड में से एक एग्जाम्पल हमने दूसरा एग्जाम्पल, और ये दो जो आपको दिया गया है ये दोनों यानी टोटल 4 एग्जाम्पल्स आपको आज होमवर्क में परफॉर्म करना है। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि 324 और 15625 कैसे उसको स्क्वायर रूट में कन्वर्ट करना है। दोनों की एक्चुअल प्रोसीजर यहाँ पे गिवन है। यू कैन ऑल्सो शोइंग दैट, अदरवाइज यू कैन वर्क विथ योर ओन वे। आप अपने आप भी कर सकते हो विदाउट शोइंग दिस थिंग्स, बट टोटल यू हैव टू परफॉर्म टुडे द 4 यूजिंग द डिवीजन मेथड जो सप्लीमेंट्री बुक में बताया वो, और इसी वीडियो में मैंने एक और एग्जांपल सॉल्व किया अभी। और ये दो 3 to 4 एंड 15 6 to 5 ये दोनों भी आपको आज सॉल्व करने हैं। यहाँ पे आपका सॉल्यूशंस गिवन है तो आप सॉल्यूशंस उसमें देख के भी कर सकते हैं। So I hope that this is for understanding point of view. So today we discussed the long division method with using 6 various steps. So you have to write all 6 steps over here and you practicing more on that things. I hope you understood well. And if you having any kind of the query then you can ask, but you listen carefully that whatever the homework is suggested in this video you have to send it. Thank you very much for being with us. We will meet very soon into the next lecture. Thank you.